سے رسولوں کی جو تعداد تھی وہ اس کا تعین ہو گیا، یعنی وہ پوری ہو گئی، اور سلسلہ محمدی کے بھی آخری خلیفہ ظاہر ہو گئے۔ آپ یہ کوئی کہے گا ایک منٹ سیال صاحب اچھا اچھا ایک منٹ سیال صاحب اچھا اسے عبارت نو دوبارہ پڑھ کے تے نبوت دا مینوں دسو کتے لکھیا ہے اتنے خلافت دا لکھیا ہے 14ویں خلیفہ دا مرسل رسولوں کو بھی لکھا ہے، رسولوں کو لکھا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، پیچھے جائیں آپ پیچھے جائیں۔ اور پھر اچھا میں پیچھے اچھا اور پھر سوا اس کے سورت مرسلات میں ایک آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی ایک باری علامت یہ ہے کہ ایسا شخص پیدا ہو جس سے رسولوں کی حد بست ہو جائے، یہ رسولوں کی حد بست ہو جائے، یہ اس میں سورت مرسلات میں ذکر بھی رسولوں کا، تو رسولوں کی حد بست ہو جائے۔ اب آگے سن لو، اب یعنی سلسلہ استخلاف محمدیہ کا آخری خلیفہ جس کا نام مسیح موعود اور مہدی موعود ہے ظاہر ہو جائے، اور وہ آیت یہ ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ، یعنی وہ آخری زمانہ جس سے رسولوں کے عدد کی تعیین ہو جائے گی، یعنی آخری خلیفہ کے ظہور سے قضاء و قدر کا اندازہ جو مرسلین کی تعداد کی نسبت مخفی تھا ظہور میں آ جائے گا۔ یہ جو ہے یہ مرزا صاحب یعنی رسولوں کی تعداد یہاں پوری کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی اچھا یہ آیت بھی اس بات پر نص صریح ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، کیونکہ اگر پہلا یہاں بلا لکھا ہوا ہے لیکن نیچے پہلا ہے، یہ تھوڑی سی غلطی ہے، یعنی پہلا مسیحی دوبارہ آ جائے تو وہ افادہ تعیین عدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک رسول ہے جو فوت ہو چکا، اور اس کی جگہ خلفائے سلسلہ محمدیہ کی تعیین مطلوب ہے۔ یہ بھی ایک بات ہمارے تائید کر دی مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو پہلا رسول ہے، بنی اسرائیل کا رسول ہے، تو یہاں ان کے آنے سے رسولوں کی تعداد پوری نہیں ہوتی، وہ صرف یعنی سلسلہ محمدیہ میں پیدا ہوگا تو رسولوں کی تعداد پوری ہوگی۔ اس حساب سے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب ایک قسم کے آپ کے نزدیک آخری رسول ہیں۔ اچھا، اور اگر یہ سوال ہو کہ اوقات کے یہ معنی یعنی معین کرنا اس عدد کا جو ارادہ کیا گیا ہے کہاں سے معلوم ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتب لغت لسان العرب وغیرہ میں لکھا ہے قد یجدی، معذرت سے میرا کوئی تلفظ زبر زیر ہے نہیں تو معذرت میں پہلے کر لوں، قد یجدی او التوقیت بمعنی تبیین الحد والعدد والمقدار کما جاء فی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لم یقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الخمر حدائی لم یقدر ولم یحدہ بعدد مخصوص، یعنی لفظ توقیت جس سے اوقات نکلا ہے کبھی حد اور شمار اور مقدار کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمر کی کچھ توقیت نہیں کی، یعنی خمر کی حد کی کوئی تعداد اور مقدار بیان نہیں کی اور تعیین عدد بیان نہیں فرمائی، پس یہی معنی آیت وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ کے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے میری پر ظاہر فرمایا، اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسولوں کی آخری میزان ظاہر کرنے والا مسیح موعود ہے، یعنی اس کے یہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی رسولوں کی آخری میزان ظاہر کرنے والا۔ جی محترم، اس سے پہلے کوئی حدیثیں بھی بیان کی ہیں مرزا صاحب نے یا اپنا ہی وہ بتا رہے ہیں بات؟ ایسے جو پڑھا ہے اس میں کوئی بات کا اس میں حدیثیں ہیں یا اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کوئی بات ہو؟ قرآن کی آیت بھی ہے کوئی؟ نہیں، وہ تو انہوں نے اوقات کے معنی کے لیے ایک حدیث بیان کیے اور رسول یعنی آیت پیش کر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت پیش کر رہے ہیں، سورہ مرسلات کی آیت ہے جی، اور ساتھ میں حدیثیں بھی بیان کرتے جا رہے ہیں، یعنی وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے، وہ حدیثوں سے اور قرآن سے کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی آگے پڑھیں۔ جی اچھا، قرآن پاک کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں کہ آخری میزان ان پر ختم ہو رہی، یعنی آخری رسول جو ہیں وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہیں۔ وہ آپ کو پڑھ لیں، میں آپ کو اگر کوئی دور سے بتاؤں گا۔ اچھا، اب اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی رسول کوئی اور بھی آنے آئے وہ سورۃ اعراف پیش کرے گا تو وہ مرزا صاحب کے اس فرمان کی نا آپ آگے پڑھیں۔ چلو
अपने पास से कोई अच्छा, हाशिया जब तादाद ही पूरी हो गई, हद बस्त हो गई, हद बस्ती हो गई है, तो उसके बाद कोई मानेगा तो फिर वो मैं आपको बताऊंगा कि हद बस्त क्या है, हजूर से बताऊंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। करे आप पढ़े पढ़े नहीं, इसी से बताना, इसी को मुझे समझाने, यही समझानी है मुझे, ये जो मैंने पढ़ा है यही समझाना है ये मुझे। जो आपने आप पढ़ा है ना मेरे मोहतरम, आगे पढ़ेंगे भी जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे, अच्छा तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो आप पढ़ेंगे ना सारा, जब पढ़ चुकेंगे, फिर मैं आपको हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी जो है ना वो बताऊंगा, हदीस बताऊंगा बकायदा लगा के, ऐसे नहीं, कहानी नहीं। वो यार मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कुरान पाक की आयत और सूरा दूसरा क्या जी नाम जी हदीस से ये बयान कर रहे हैं कि आखिरी आखिरी हद बस्त पूरी हो गई। जी 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 जी, मैं वही सलाम अब अगर कोई दावा करेगा, अब आपके नजदीक भी वो भी कज़ाब ही होगा ना आपके नजदीक। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि हम ऐसे कोई बात यानी नहीं हमारे करेंगे। नजदीक रसूल अरबी आखिरी हैं और आपके नजदीक मिर्जा साहब आखिरी है नहीं यार। नहीं नहीं, जी ऐसा जी उन्होंने लिखा ही नहीं कहीं कि मैं आखिरी नबी हूँ, कभी नहीं लिखा। चलो मैं मैं ये फिर हजूर पढ़ से, मैं फिर मैं पढ़ ना फिर पढ़ हजूर से ना पढ़ ये मैं, हाँ फिर पढ़ दे, कोई मसला नहीं, फिर पढ़ दे। फिर पढ़। अच्छा, और फिर माँ सिवा इसके सूरत मुरसलात में एक आयत है जिससे मालूम होता है कि कुर्बे क़यामत की एक बारी इलामत ये कि ऐसा शख्स पैदा हो जिससे रसूलों की हद बस्त हो जाए। जी मोहतरम, रसूलों की हद बस्त हो जाए, अभी कोई कसर बाकी है जिसकी मैं हद वो बस्त हजूर भी हो से जाए। अच्छा नबी चलो पाक आगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना साबित करूंगा। अच्छा हजूर को मानते हैं ना, बस आप पहले बता दें नबी अच्छा, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान आज पाक तक। की आयत से कुरान पाक की आयत पेश कर रहे हैं मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब, आप जरा खामोश रहे हैं, वो कुरान पाक की आयत से जी जी, साबित कर रहे जरूर हैं। जरूर आगे जरूर। सुनो, यानी सिलसिला इस्तखलाफ मोहम्मदिया का आखिरी खलीफा जिसका नाम मसीह मौद और महदी मऊद ज़हर हो जाए। यानी आप कोई आपके नजदीक भी कोई खिलाफत चलो का रुक दावा जाए, यहाँ पे करेगा रुक तो जाए, आखिरी खलीफा यहाँ है। पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, इसका जी जवाब दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है? जी इसका जवाब दे जी देता हूँ। जी मोहतरम। अब आपने कहा है कि मिर्जा साहब ने कुरान करीम की आयत पेश करके और फरमाया है कि मसीह और महदी आ जाएगा, तो चूंकि हजूर ने मसीह और महदी को एक ही वजूद फरमाया है, तो ये हद बस्त हो जाएगी। ये मिर्जा साहब ने लिखा है अपने पास से ये बात, ठीक है? खोले माइक, माइक खोला रखे, 2 मिनट जरा। एक या दो की बात नहीं कर रहे मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब सूरत मुरसलात पेश करके। एक तो ये दो बातें, तीन बल्कि कर रहे हैं। एक बात ये कर रहे हैं कि रसूलों की अदबस्त हो जाएगी। नंबर 2, सिलसिला मोहम्मदिया के आखिरी खलीफा वो होंगे। नंबर 3, वो ये कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम नहीं आ सकते क्योंकि वो तो पहले बनी इसराइल के रसूल हों, तो वो आकर ये रसूलों की अदद का यानी जो तादाद है उसका तयीन नहीं कर सकते, क्योंकि तयीन जो होनी है वो सूरत मुरसलात की रूह से, यानी वो एक रसूल आना है जो उनके बकौल सुम्मत से आना है, तो उससे पूरी होनी है। तो ईसा इब्न मरियम का क्योंकि पहले उस तादाद में आ चुके हैं, लिहाजा वो आकर ये तादाद पूरी नहीं कर सकते, वो पहले ही एक किस्म का रसूल बनी इसराइल की तरफ है, तो इसलिए माइक बंद नहीं करना। जी 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 ठीक हो गया। अब हजरत ईसा और हजरत नबी पाक अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप नबियों को मानते हैं और हजूर को आखिरी मानते हैं, ठीक है? हम रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मानते हैं। मिर्जा साहब अपने आप को यहाँ आखिरी करार दे रहे हैं। यार आपने और कुछ कहना तो पहले कह रहे, मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं कायल है आप, कायल है, मैं खामोश हो जी जी, जाता कोई ऐसी बात नहीं। अब माइक म्यूट ना करें, मैं आपको कुछ पूछूंगा उसका जवाब दे दें बस। हाँ जी, मिर्जा साहिब फरमा रहे हैं कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप आखिरी नबी हजूर को मानते हैं और हजरत ईसा को सेकंड लास्ट नबी आप मानते हैं, सही? क्या मतलब? हजरत ईसा पहले थे, आखिरी हैं, या हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। हजरत ईसा क्या है? वो उनसे पहले हैं, सेकंड लास्ट, ठीक हो गया? वहां तक कमो बेश 1 लाख सेकंड लास्ट आप लास्ट से जी, पहला, हाँ जी, वहां तक जितने आए हैं कम लास्ट से पहला यार, जी, ठीक हो उनसे गया? पहला अब लास्ट। ये एक तादाद मुकम्मल हो गई। जी अब एक नबी के आने की, हो गई, क्योंकि वो सेकंड लास्ट ही रखे, उनको आगे ना लाना अब वापस। अब एक नबी के आने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद बिशारत दी है, हजूर ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि नहीं दी? उम्मत मोहम्मदिया की तरफ किसी नबी के आने की? जी जी, उम्मत मोहम्मदिया की तरफ किसी नबी की नहीं की। नहीं की? उम्मत मोहम्मदिया की तरफ किसी नबी के आने की नहीं की।
मैं पूछ रहा हूँ कि हजूर के बाद कोई नबी आएगा? मैं वही बता रहा हूँ कि आपने कहा है ना कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ, मैंने आपसे उम्मत पूछा है ना उम्मत कि मूसिया उम्मत की तरफ, मोहम्मदिया की तरफ है। उम्मत नहीं मूसिया नहीं, की उम्मत तरफ मोहम्मदिया आएगा? की बात, नहीं नहीं, ठीक है, उम्मत नहीं नहीं, मोहम्मदिया की उम्मत तरफ कोई नहीं मुस्लिया आएगा, तो अब खत्म हो उम्मत गया। मोहम्मदिया की तरफ आप कोई नबी ठीक है, रसूल नहीं। आपने हजरत ईसा को सेकंड लास्ट रखना है। मैं आपके सामने एक हदीस लगाऊंगा जिसमें आने वाले को नबीउल्लाह फरमाया जाएगा। आपने मुझे बताना है। नहीं नहीं, वो तो कुरान कुरान कह रहा है नबीउल्लाह, कुरान कह रहा है। कुरान भी कह रहा है, इससे बिल्कुल अपने ठीक। मरियम को नबीउल्लाह कहला है, कुरान कह रहा है वो ना, तो क़यामत तक कहे। कुरान कह हाँ रहा जी है कह ना, रहा, हजूर भी इससे फरमा रहे हैं, इससे अपने मरियम को नबी। हजूर भी अच्छा फरमा। पहले इसको पढ़ने दो, अब इसको पढ़ने अभी दो, नहीं, अब यहीं पे एक पहले दफा ना इसका इसको। जवाब ले लो ना, इसका जवाब ले लो ना। अब अभी मिर्जा साहब नहीं की नहीं, वो तो बात का मिर्जा साहब ने जवाब दे दिया, मिर्जा साहब ने जवाब दे दिया, उसका बड़ा नहीं, प्यारा ऐसे जवाब नहीं। दिया। सयाल भाई ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं ना। सयाल भाई, अभी किसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया जो मेरे साथ मिर्जा साहब की किताबों और कुरान हदीस तो मेरा छोटा बेटा भी कर लेगा, किताबों से तो मैं जाने नहीं देता, मैं तो बंदा लब रहा हूं ना। अभी इस तरह ना करो यार, ज्यादती आप है। करें बात, अच्छा, ये तो सयाल आपकी भाई, बड़कें जो है ना, ये हवाई सयाल बड़कें भाई, बड़ी सुनी हुई हैं, सयाल भाई, इनका असर अब कोई नहीं होता। आप सयाल करें भाई, बात, असर असर तो करें झूठों पर बात, नहीं होता सयाल भाई, ये तो ठीक है। आप करें मुझे जवाब दें मेरी बात का। सयाल भाई, करें बात। हजरत ईसा हजूर से पहले हैं, जी हजूर है पहले, आखिरी। हजूर आखिरी का मतलब होता है कि उसके बाद कोई नहीं आएगा, ये आपका अकीदा है। हाँ जी, मिर्जा उसके साहब बाद कह रहे हैं, हाँ जी, उम्मत मिर्जा मोहम्मदिया साहब की अपने तरफ कोई नहीं आएगा। किसी भी तरफ नहीं आएगा ना, हजूर आखिरी है ना। जी जी, हाँ, करें करें कि कोई बात, नबी करें आएगा करें जो हजूर के आप बाद। कहना चाहते हैं, मुझे पता। नहीं हाँ नहीं, जी, मुझे आपको पता है तो फिर क्यों इस तरह के पंगे लेते हो फिर जनाब? हजूर नहीं नबी नहीं, आपके पास जब जवाब ना बने तो उस वक्त आप को पनाह मिलती है इस इब्ने मरियम में ही। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं भी तो उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आकर, सुन लो मेरा जवाब, सुन लो मोहतरम, सुन मैं लो। तो सवाल अभी जवाब, मैं मैं तो कह रहा मुझे तो जवाब हूँ, देने दो, मेरे बाद दे लेना, सुन तो मेरे लो, बाद दे सुन लो लेना, ना, सुन मेरे लो ना, बाद दे लेना। मेरी तो बात सुन लो, आप मेरी सुन बात लेते सुन हैं, लो, पहले आप सुना लो। सिर्फ एक। अच्छा, आपने कहा है कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ एक नबी आने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने यही कहा है ना? आप अपनी बात मुकम्मल कर लो सर, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मैं मेरी जवाब अच्छा होती आपने, अच्छा अच्छा, मेरी सुन, आपने कहा है थोड़ी देर पहले कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया की तरफ एक नबी के आने का वादा किया है। कहा है, चलो कहा है, मैं फिर मेरा वो मेरे अल्फाज ना मुंह आप पकड़ में लेना। अपने अल्फाज अच्छा मत डालें। मैं आपसे अच्छा ये भाई नहीं, अच्छा आपने जो कहना है कह लो, फिर मैं आपको पूछूंगा, अच्छा, फिर आपने चलो, मुझे बताना है। अच्छा, हाँ जी, पूछ लें। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने ये कहा है कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ एक नबी आएगा, आपने कहा हाँ कि एक नबी उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ अगर कोई भी आकर दावा करेगा कि मैं उम्मत मोहम्मदिया की तरफ नबी हूं, तो मैं उसे कज़ाब और दजाल मानता हूं। इसका अब सबूत दे आप दें, ने इसका ये सबूत साबित करना, अब दे, सुन इसका लो आप मेरी सबूत दे बात दें। मुकम्मल, एक मिनट मेरी बात सुन लो ना, सुन लो मोहतरम, मेरी बात मुकम्मल होने दो, उसके बाद आपको हक हासिल है। आपने अब इस बात का सबूत देना है कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आने का किसी नबी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां नबी आपकी तरफ आएगा, ये उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आएगा। जी, आपने इस बात का जवाब देना है पहले मुझे। ये जो बात आपने नई छेड़ी है कि हजरत उम्मत मोहम्मदिया में अगर कोई आएगा तो वो कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा, ये मुझे बता दें, हजूर ने फरमाया है, हदीस है कोई? एक तो जैसे आपने फरमाया था ना कि मेरे अल्फाज आपके अल्फाज मैंने अपने आपके मुंह में नहीं देने, और मेरे अल्फाज आपने मेरे मुंह में ज़बरदस्ती नहीं देने। मैंने कहा है कि आपसे मैंने पूछा था कि मोहतरम, आपने कहा है कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ नबी आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आने का अगर कोई भी दावा करेगा तो वो कज़्ज़ाब और दजाल होगा, क्योंकि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद, एक हदीस है 30 दजाल का जिक्र भी है, तकरीबन 30 दजाल का भी जिक्र है, और 30 और उससे ज़्यादा का भी जिक्र है कि जो सब के सब अपने आप को नबी ख्याल करेंगे या दावा नबूवत करेंगे, वो सब कज़ाब और दजाल होंगे। लिहाजा मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 की भी हदीस है, ये भी याद रखना कि 70 और 70 कसरत पर बोला जाता है कि 70 दजालों के भी जिक्र हजूर ने
सच्चा भी फरमाया है। सुन लो और मेरी बात मुकम्मल होने यार देना, ऐसे उसके नहीं, बाद लंबी आपको लंबी कहानियां ना सुनाओ ना। अच्छा आप किसी एक को सल्लम ने फरमाया कि वो सच्चा आप नबी सल्लम भी ने आएगा। सुन तो लो ये यार, ठीक है, ये प्यारे भाई, ठीक है, सुन तो यार अच्छा मुख्तसर करो ना बात, मुख्तसर करो। सुन लो, एक किसी मिनट सच्चे मेरी बात सच्चे बस नबी के आने की भी हजूर ने मुकम्मल बिशारत दी है। होने यार, हजूर ने सुन किसी लो सच्चे सुन नबी के आने अच्छा की बिशारत दी है सयाल साहब। अच्छा सुन, हाँ जी मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ अच्छा आप वो सल्लम ने बताओ। फरमाया मेरे बाद, यानी जो जितने भी ये तादाद मैंने आपको बता दी है कि दज्जाल और कज़ाब होंगे जो दावा नबूवत करेंगे। आपने कहा है कि आप सल्लम ने, यानी कि आपके नज़दीक उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आने का, अगर किसी जगह भी आप सल्लम ने फरमाया कि फलां आप उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आएगा और दावा करेगा, तो उसको मानना। मुझे कुरान और हदीस से कोई एक दिखा दें कि आप उम्मत ठीक हो मोहम्मदिया ठीक हो की गया, ठीक हो तरफ गया, आने ठीक का हो आप सल्लम ने ठीक हो गया, फरमाया। ठीक हो गया। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मेरे सवाल का जवाब दे दें एक का, कि क्या आप मानते हैं कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा? जी उम्मत मोहम्मदिया की तरफ हम किसी को नबी नहीं मानते। किस तरफ मानते हैं नबी आना? हाँ जी, किस तरफ आएगा नबी अगर आएगा तो? उम्मत मोहम्मद हाँ जी, उम्मत मोहम्मदिया की तरफ किसी भी नबी के आने के किस ख्याल तरफ नहीं है। आएगा जो जो नबी भी बाद में आकर हजूर उम्मत के आएगा? मोहम्मदिया में दावा, जो हजूर के हाँ बाद जी, नबी आएगा वो किस तरफ आएगा? वो आप बताएं, जो आना है तो नहीं आप नहीं, बताएं। मैं आपका, तो मैं कह रहा आपसे हूँ पूछ रहा कि हूँ उम्मत मोहम्मदिया की सर, तरफ। आपका सर जी आपका अकीदा है कि हजूर के बाद किसी भी तरफ कोई नबी आएगा? उम्मत मोहम्मदिया की तरफ, ये मेरे अल्फाज को उम्मत आपने नहीं, उम्मत मोहम्मदिया मैं कह ही नहीं मेरे रहा, मैं अल्फाज, कह रहा हाँ हूँ जी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि क्योंकि वसल्लम, पारे प्यारे नबी के बाद कोई नबी किसी भी तरफ आएगा हजूर के बाद? हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मोहम्मदिया की तरफ कोई नबी नहीं आएगा, और अब उम्मत मोहम्मदिया के बाद हजूर कोई चले, उम्मत है ही नहीं है, ये सुने भी सुने याद रखना। सुने सुने हाँ जी सुने सुन लो, एक मिनट सयाल मेरी, भाई, अब आप सयाल भाई, सवाल कर रहे हैं ना, सयाल भाई, मेरी बात सुन लो, सुन सॉरी लो। सॉरी, आप करो। अब ये नहीं कि कोई और उम्मत है और उसकी तरफ आएगा और हमारी तरफ उम्मत मोहम्मदिया की तरफ नहीं आएगा। अब उम्मत मोहम्मदिया ही क़यामत तक है और उसकी तरफ कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। सयाल भाई, मेरा आपसे सवाल है कि क्या हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा? अनम्यूट करें सयाल भाई, मेरे सवाल का जवाब दें। जी मोहतरम, आपने ये जो फरमाया था ना कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ अब कोई नबी आएगा, तो मैंने ठीक है, उसका जवाब आपको ये दे बात दिया कि मेरी गलत उम्मत है, ये मोहम्मदिया बात की मेरी गलत तरफ है कि अब उम्मत, कोई भी ये ठीक है, नबी नहीं ठीक है, आएगा। वाड़े ठीक है, हाँ का जी, ठीक, हाँ जानी जी, माउन लन हाँ जी। भैन लन कुत्तेरे पुत्र थोड़े तेरे माँ दे पुत्र नहीं है इसकी क्या तो है तेन पहले। अच्छा जी सयाल भाई, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, मेरी बात का दोबारा से ना आपसे सवाल करता हूँ, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ रहा है? इतना सवाल है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईसा इब्न मरियम का फरमाया, और उसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि वो आकर उम्मत मोहम्मदिया की तरफ दावा आकर करेंगे, क्योंकि कुरान पाक के ने फरमा दिया कि वो रसूलन इला बनी इसराइल हैं, और आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी सूरह सफ में फरमा दिया कि ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ। तो इसलिए वो आकर उम्मत मोहम्मदिया में कहीं भी नहीं लिखा कि वो आकर दावा करेंगे, बल्कि सूरत आले इमरान आयत 82 की रोह से या 81 की रोह से तमाम अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और ईसा इब्न मरियम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी करेंगे, और उनको हाकिम आदिल और हुक्मरान करार दिया गया, और अल्लाह ताला के नबी ने उन्हें अपना खलीफा करार दिया। आप तो भाई अभी थोड़ी देर पहले हजूर को आखिरी नबी कह रहे थे, और मिर्जा साहब की तहरीर भी आपने पढ़ के सुनाई जिसमें कहते हैं कि हजरत ईसा चूंकि नहीं आ सकते, तादाद बढ़ कम जाती है। आपने तो हमें फरमाया था कि हजूर आखिरी हैं। अब ये आपने दोबारा हजरत ईसा को जब आप लाएंगे, मैंने आपसे पूछा था कि हजरत ईसा सेकंड लास्ट हैं, आपने कहा हाँ जी। अब ये सेकंड लास्ट जो नबी हैं उनको आप दोबारा ला रहे हैं, कहीं भी ला रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे कहाँ ला रहे हैं। तो आपने मान लिया है माशाल्लाह, बहस तो यहाँ पे खत्म हो गई कि आपने इस बात को इकरार कर लिया कि हाँ हजूर के बाद हजरत ईसा यानी एक तरह की नबूवत जारी है, और वो बनी इसराइली नबूवत है, क्योंकि आपने खुद आयत पढ़ दी है कि वह खातम, वो उनकी जो है कि वो बनी इसराइल की तरफ रसूल है। जज़ाकल्लाह, मामला देखे खत्म हो गया। देखे सुने जरा, आपने खुद ही पढ़ दी है वो आयत। कोई नबी आ रहा है, इतना सवाल सुन ले जरा।
रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईसा इब्न मरियम का फरमाया और उसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि वो आकर उम्मत मोहम्मदिया की तरफ दावा आकर करेंगे, क्योंकि कुरान पाक के ने फरमा दिया कि वो रसूलन इला बनी इसराइल हैं, और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी सूरह सफ में फरमा दिया कि ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ। तो इसलिए वो आकर उम्मत माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अपना आपने बहुत अच्छा बता दिया कि हज़रत ईसा तो आ ही नहीं सकते इधर, क्योंकि वो बनी इसराइल की तरफ रसूल हैं और बनी इसराइल की जो नबूवत है उसका ख़ात्मा हो चुका, यानी कि हज़रत ईसा के आने से उसकी मुकम्मल हो चुकी वो शरीयत। अब शरीयत मोहम्मदी है। शरीयत मोहम्मदी है कि नहीं है? खोलें ज़रा माइक खोलें सर ज़रा। अच्छा, आपकी अब बात कौन सी शरीयत चल रही है? आपकी बात मुकम्मल। अब शरीयत कौन सी चल रही है? नहीं ऐसे नहीं, सुन लो ना मेरी बात। नहीं मेरे सवालों का जवाब देना। नहीं एक सेकंड यार, शरीयत मोहम्मदिया, शरीयत मोहम्मदिया। अच्छा, अब जो भी आएगा वो शरीयत मोहम्मदी से बाहर आएगा, हजूर की शरीयत पर अमल करेगा या अपनी अलग शरीयत पे अमल करेगा? हजरत ईसा जब आएंगे तो वो अब मैं सुन ले, मेरा सवाल सुन ले सयाल भाई। अच्छा जी, नहीं हजरत सुने वीडियो चलाइए ना, आप मुझे भी बोलने का मौका दो ना। मेरी बात सुनने पर मैं जवाब ले लेना। मेरा सवाल मेरा मौका सुन लो ना, आपने चलाइए ना। सवाल ले ले, ऐसे नहीं बोलने दूंगा मैं। सवाल ले ले। देखे, आपने मुझे पहले 2-3 दफा ताने मारे, ठीक है ना? आपने कहा जी कि उम्मत मोहम्मदिया में कोई नहीं आएगा। ये भी आपकी ऑडियो मेरे पास मौजूद है। ये आपने मुझे बार बार ताने मारे, मैंने चुप करके सुन लिया। इसका मैंने आपको टच भी नहीं किया, जान के नहीं किया था। मैंने आपको पहले पक्का किया, आप यहां तक कम से कम आओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व रसूलन इला बनी इसराइल हैं और मिसाकन नबीहीन में हजूर से उन्होंने मिसाक लिया। अच्छा जी, अब उनकी नबूवत तो होगी उधर। आप इस बात को मानते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में कोई नबी नहीं आएगा? हजरत ईसा जब आएंगे तो वो अपनी शरीयत पर अमल करेंगे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे? इसका बता दें अवाम को जरा, बेशक तफसील से बता दें। जी मोहतरम सारे दोस्त सुन रहे होंगे कि जब मैंने तलत साहब से पहले कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ कोई नबी आएगा, तो उन्होंने कहा था उम्मत मोहम्मदिया की तरफ नबी आएगा। तो मैंने इनको पहले बताया था कि जो भी नबी उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आकर दावा करेगा कि मैं नबी या रसूल हूँ, दावा नबूवत करेगा उम्मत मोहम्मदिया की तरफ होने का, वो कज़ाब और दजाल होगा। अब ये मेरी बात को उलझा कर फिर कह रहे हैं कि जी आपने कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया में नबी, में और की तरफ का बड़ा फ़र्क है। मोहतरम, आप अपनी बातों में फंस चुके हैं। आपने की तरफ कहा था, मैंने आपसे पूछा था कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोई एक हदीस, कोई एक आयत पेश कर दें जिसमें आकर उम्मत मोहम्मदिया की तरफ नबी या रसूल होने का दावा करेंगे, तो मैं आपकी सारी बातें मान लूँगा। लेकिन आप एक हदीस और एक आयत नहीं पेश कर सकते जिसमें यह जिक्र हो कि ईसा इब्न मरियम उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आकर दावा करेंगे। जैसा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने फरमाया है कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, कि ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मिर्ज़ा साहब का ये इल्हाम है। वमा अरसलनाका इल्ला कफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरन का मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है। तो जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने फरमाया कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, इसी तरह अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर कहेंगे तो मैं यकीन कर लो अभी आपकी बात मानकर अपनी हार मान लूँगा और आपका मौक़िफ़ तस्लीम कर लूँगा। लेकिन आप एक हदीस और एक आयत पेश नहीं कर सकते। बाकी आप बार बार कह रहे हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में नबी, तो मैंने आपको बताया है पहले भी कि ईसा इब्न मरियम जो हैं वो रसूलन इला बनी इसराइल हैं, बनी इसराइल की तरफ रसूल हैं। और उन्होंने ये भी फरमाया कि ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ। ये क़यामत तक कुरान यही कहता रहेगा। इसलिए अगर तो आपके पास ये है जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने फरमाया कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, अगर ईसा इब्न मरियम का भी ये दावा आप दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूँगा। वरना जो भी उम्मत मोहम्मदिया की तरफ नबी और रसूल होने का दावा करेगा तो वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कज़ाब और दजाल होगा। तो आप अगर हज़रत ईसा इब्न मरियम का दावा दिखा दें
कि वो आकर ये दावा करेंगे तो मैं आपकी बात मान लूँगा, वरना मैंने आपको बता दिया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने भी फरमाया कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हो चुके हैं, और वह इज़ा ख़ज़ल्लो मिसाकन नबीयीना की आयत की रोह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और वो आयत सूरत आले इमरान आयत 81 की रोह से वादा कर चुके हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करेंगे, और वो जब आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदिल हुक्मरान होंगे। तो इसलिए आपका ये बार बार कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उम्मत मोहम्मदिया की तरफ कोई नबी आएगा, तो आप इसका सबूत मुझे दे दें, मैं आपकी बात मानूं। जी, अभी सुने ज़रा गौर से। आपने ये बात पहले मुझे बताई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अब भी आपने बार बार कहा कि वो बनी इसराइल की तरफ रसूल हैं, अब जब आएंगे तो वो आदिल हुक्मरान की तरफ आएंगे, यही फरमाया सिर्फ हुजूर ने? जवाब दें, क्या हुजूर ने ये सिर्फ फरमाया कि वो जब आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी मैंने मुकम्मल नहीं, कहानी नहीं सुनानी ना, साथ साथ बात करते जाते हैं ना, आप जवाब दे दें हाँ या ना में। क्या वो सिर्फ आदिल हुक्मरान की तरह आएंगे, नबी नहीं होंगे? देखो मोहतरम, कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने उनको नबी और रसूल बनी इसराइल की तरफ कह दिया है, तो वो टाइटल तो हम क़यामत तक उनसे नहीं छीन सकते। वो सिर्फ नबी पाक क्या सिर्फ कुरान ने कहा है? सिर्फ कुरान ने कहा है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? वो जो उनकी नबूवत थी वो बनी इसराइल की तरफ थी। चले देखें सयाल भाई इस तरह नहीं, सयाल भाई सुने जरा, सयाल भाई मुख्तसर हाँ या ना में जवाब दें। हजरत ईसा की जो नबूवत थी वो बनी इसराइल की तरफ थी? मुझे मौका देंगे जवाब देने का आपका? हाँ या ना में जवाब देना, मेरी बारी है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, हाँ या ना में जवाब देना कि बनी इसराइल की तरफ रसूल थे, बता दें। नहीं ऐसे ना करें ना, आप देखें ना, अपनी बात मुकम्मल करें, फिर अपनी बात मुकम्मल करूंगा ना, मुकम्मल पूछ के करूंगा ना आपसे। पहले आपसे पूछूंगा क्या वो बनी इसराइल की तरफ रसूल थे? आप थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे, अब आप मुकर रहे हैं। जी वो बनी इसराइल की तरफ रसूल है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया उनका कुरान करीम के मुताबिक। अब हदीसों में क्या उनके लिए नबीउल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? क्या उनके लिए नबीउल्लाह का लफ्ज़ हदीसों में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया? देखो मोहतरम, कुरान में जब इस्तेमाल हुआ है तो वो हदीस में अगर आ जाएगा तो कोई ऐसा मसला तो नहीं। ठीक है। और उनकी जो नबूवत है, आपने बार बार कहा कि बनी इसराइल की तरफ नबूवत है, और अब जब वो आ रहे हैं तो वो किधर आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? क्योंकि वो बनी इसराइल वाली नबूवत उनकी जारी है अभी या ख़त्म हो गई है? देखो बनी इसराइल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़माना आया है तो उस वक़्त से पिछली सारी शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। अगर उनकी शरीयत जारी रहती तो वो बेशक क़यामत तक वो भी रहते, लेकिन उनकी शरीयतें जब मनसूख हो चुकी हैं और वह इज़ा ख़ज़ल्लो मिसाकन नबीयीना की रोह से सारे अम्बिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो अच्छा, अब जब वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हुजूर की शरीयत पर अमल करेंगे? जब सूरत आले इमरान के रूह से यानी कि वो आप सल्लम की उम्मती हैं, जब आप आ रहे हैं तो वो हुजूर की शरीयत पर अमल करेंगे? हुजूर की शरीयत पर अमल करेंगे कि नहीं? सुन लो यार, हुजूर की शरीयत पर अमल करेंगे कि नहीं? सुन लो यार, हुजूर की शरीयत पर अमल करेंगे, इसका जवाब दें। सुन लो यार मोहतरम, सुन तो लो, सुन। अच्छा, वाइज़ा ख़ज़ल्लो मिसाकन नबीयीना के अंदर जो है एक तो ईमान लाने का जिक्र है, दूसरे नंबर पर आप सल्लम के दीन की मदद करने का भी जिक्र है। तो इसलिए जब वापस आएंगे तो वो आप सल्लम के दीन साफ़ शरीयत मोहम्मदी की यानी मदद करेंगे, इस दीन की मदद करेंगे। तो उस पर अमल तो आपके नज़दीक जो भी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नबी आएगा वो कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा। आपने थोड़ी देर पहले ये बात फरमाई थी, तो आपके नज़दीक फिर वो कज़्ज़ाब और झूठे होंगे नाउज़ुबिल्लाह? क्योंकि मैंने आपसे पूछा, सुने आपने मुझसे पूछा था, अभी सुन लो पहले मुझे खत्म करने दो बात। नहीं ऐसे नहीं, आपने जो मेरे पास रिकॉर्ड पढ़ा, आप मेरे पास रिकॉर्ड पढ़ा,
एक मिनट मेरे पास रिकॉर्ड है, नहीं ऐसे नहीं बोलने दूंगा मैं, सुने। बोलने दो आपने मुझे कहा था कि हजरत ईसा जो हैं वो उम्मत मोहम्मदी उम्मत की तरफ कोई नबी नहीं आएगा। मैंने आपसे पूछा कि जनाब हजरत ईसा, आपने खुद ही फंस गए, आपने कहा कि हजरत ईसा आए हैं बनी इसराइल की तरफ। मैंने अब आपसे पूछा कि क्या उनकी नबूवत ख़त्म हो गई? आपने कहा जी हजूर से पहले सारी नबूवतें ख़त्म। फिर आयत आपने पढ़ी मिसाकन नबीयीन, कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से मिसाक लिया। इसका मतलब है कि वो तमाम नबी जो हजूर की उम्मत में आएंगे वो हजूर की ही उम्मत में आएंगे हजूर की मदद करने के लिए, ठीक है। वो हजूर के उम्मती बनेंगे लेकिन होंगे नबी, ये आपने फरमाया था। साथ में आपने ये ऐलान किया, क्योंकि ज़बान तो खोलनी है, आपने कहा जी जो भी आएगा नबी हजूर के बाद वो कज़्ज़ाब होगा, नाउज़ुबिल्लाह, झूठा होगा। फिर आपने खुद ही थोड़ी देर बाद हज़रत ईसा के आने का हमें बता दिया कि हज़रत ईसा आएंगे हजूर के बाद। मैं बड़ी मुश्किल से आपसे निकलवाई ये बात, मैंने बड़ी मुश्किल से, आप बताने को तैयार नहीं थे, आप घुमा रहे थे मुझे इधर उधर। हजरत ईसा को शुक्र है, मैं आपको आपने पहले ना कहा जी वो आएंगे तो हाकिम आदिल होंगे, हाकिम आदिल की तरह आएंगे। मैंने आपको ना फिर झंझोड़ा कि वो हदीसों में जो कोई तकरीबन 30 के करीब हदीसें हैं जिसमें नबीउल्लाह का जिक्र है वो कहाँ जाएंगी? फिर आपके दिमाग में आया, इसको तो पता है कि वो आएंगे तो नबीउल्लाह होंगे। अब आपने कहा जी कि आने वाला हजूर की उम्मत में जो भी आएगा, अब वो आ रहे हैं हजूर की उम्मत में क्योंकि मिसाक हुआ है, मिसाकन नबीहीन, जो भी आ रहा है हजूर की उम्मत में आ रहा है क्योंकि हजूर से उसका मिसाक है। तो आपने फरमाया था जो भी हजूर की उम्मत में आएगा वो कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा, वो उन 30 झूठों में होगा। आपने खुद ही पढ़ा है सारा, ये अकीदे हैं आपके जनाब। अच्छा, अब आपकी तकरीर ख़त्म हो गई है तो मौका दो। अच्छा मोहतरम, आप जितना ही बोल रहे हैं आप मेरी भी वीडियो चला सकते हैं। एक तो म्यूट लगाएं, ये मेरी आवाज़ वापस आ रही है मेरी तरफ, तो ये किसका मैक है, तो मेहरबानी। अच्छा, एक तो आप जितनी भी बातें कर रहे हैं सारे मेरी तरफ झूठ मंसूब कर रहे हैं कि सारा ही झूठ बोल रहे हैं। कि आप कह रहे हैं कि जी मैंने कहा कि उम्मत मोहम्मदिया में नबी, में का लफ्ज़ मैंने पूरी जितनी बातें हुई हैं मैंने एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ, ये याद रखें, आपने कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ एक नबी आएगा। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको कहा कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ जो भी नबी होकर आने का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब और दजाल होगा। तो मैंने आपसे पूछा कि आप बताएं, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने फरमाया कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अगर ईसा इब्ने मरियम आकर ऐसा दावा करना तो मुझे कुरान और हदीस से दिखा दें। जैसे ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ, तुम्हारी तरफ रसूल हूँ। अगर ईसा इब्ने मरियम ने आकर उम्मत मोहम्मदिया की तरफ दावा करना तो मुझे कुरान और हदीस से दिखा दें, वरना मैंने जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने दावा किया कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, ऐसा जो भी दावा करेगा उम्मत मोहम्मदिया की तरफ वो कज़्ज़ाब और दजाल होगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद 30 से ज़्यादा और 70 दजाल होंगे जो सब के सब दावा नबूवत करेंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी दावा नबूवत करेगा वो कज़्ज़ाब और दजाल होगा। अगर आप ऐसा दावा ईसा इब्ने मरियम का कुरान और हदीस से दिखा दें तो मैं अभी आपसे माफ़ी मांग कर मैं वफ़ात ईसा का ऐलान आज ही कर दूंगा। ये मेरा आपको चैलेंज है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में नबी। मैंने में का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया था, मैंने की तरफ किया था। तो इसलिए आप दिखा दें कि ईसा इब्ने मरियम उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आकर दावा नबूवत करेंगे तो मैं आपकी बात मान लूँगा, बेशक मैं अभी माफ़ी मांग लूँगा आपसे। तो आपने मुझे दिखाना है। अच्छा जी, नहीं हमारी ये बहस नहीं हो रही चाल साहब, आपको गलती लगी है, में या की तरफ ये नहीं हो रही। हम ये बहस कर रहे हैं कि क्या हजूर के बाद भी आने वाला नबी होगा कि नहीं, ये थी बहस। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हजूर आखिरी हैं, फिर आपने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल की तरफ रसूल हैं। मैंने आपसे बारहा पूछा कि क्या हजूर की उम्मत में भी हजूर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है? आपने पहले बड़ा इधर उधर कहानी कराई, नहीं बोले थे आप, माइक म्यूट रखते थे, खोलने के बाद भी आप पाउज लेते थे सोचने के लिए। खैर आपने बड़ा सोच समझ के फिर दिमाग में आया कि यार कई हदीसों में आने वाले को भी नबीउल्लाह कहा है। ये जो हदीस है जिसको आप सही मानते हैं, चलो बुखारी ने इसको
सही ना समझा, नहीं लिया अपनी सही में, आप इस हदीस को सही मानते हैं। इसमें आने वाले को ईसा इब्ने मरियम को ही, जिनके आने का आप चलो मानते हो, उनको हुजूर नबीउल्लाह ईसा व असहाबहू के अल्फाज दे रहे हैं। तो ये जो आने वाला नबीउल्लाह है जो हुजूर की उम्मत में आ रहा है या बाहर से आ रहा है, ये बाहर रहेगा, मूसवी शरीयत पर अमल करेगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने आ रहे हैं? अगर तो ये मूसवी शरीयत में आ रहे हैं तो फिर ये पुराने नबी हैं, ये फिर बनी इसराइल की तरफ ही रहेंगे। अगर ये उम्मत मोहम्मदिया में आ रहे हैं तो फिर ये नई नबूवत है। तो नई नबूवत के बारे में हजूर ने फरमाया है, ये हजूर नबी पाक असदकुस सादिकीन के अल्फाज हैं। आप सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करें। ये जो बिशारत है ये हजूर की बिशारत है, ये सच्चों के भी सच्चे नबी की बिशारत है कि मेरे बाद आने वाला नबी होगा। वो नबी जो होता है वो हकमन अदलन भी होता है। ये तो नॉर्मल है, आपने हकमन अदलन तक मान लिया, तेरी है सीधी तैसी है, तेरी है, तो चल थले बैठ, तो वो हाकमन अदलन भी होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो हदीस में, कुरान में तो आपने मान लिया कि वो बनी इसराइल की तरफ रसूल हैं, और आपने ये भी मान लिया कि उनकी नबूवत खत्म हो गई है। अब हदीस में यहाँ जो नबूवत है ये कौन सी वाली नबूवत है? क्योंकि मिसाक के बाद वो हुजूर के उम्मती बन गए। अब यहाँ जो नबूवत है, ये नबी जो आ रहा है, ये नाउजुबिल्लाह आपके नजदीक कज़ाब है, जो आप ऐलान कर रहे थे अभी? बोलें जी। ये मोहतरम, आपने बहुत ज़्यादा तकरीर की है और आपकी कोशिश है कि किसी तरह आपकी जान छूट जाए, तो इस तरह तो आसानी से आपकी बात जान नहीं छूटेगी। आपने कहा कि मैं और की बहस ही नहीं हो रही, तो मोहतरम आपकी बहस मैं और की से ही शुरू हुई थी कि आपने कहा कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ एक रसूल आएगा, एक नबी आएगा। और ये याद रखें कि जो भी नबी होता है उसके लिए दावा ज़रूरी होता है कि आया फ़लाँ उम्मत मैं आपकी तरफ नबी हूँ, यानी कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आप कोई नबी आएगा तो वो ज़रूर दावा करेगा। जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने दावा नबूवत किया कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, ये इलैकुम जो है ना कि मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो ऐसा दावा जो भी करेगा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो दज्जाल और कज़्ज़ाब होगा। आपने कहा है कि ईसा इब्ने मरियम जब आएंगे तो नई नबूवत, एक ये बात याद रखें कि नबी और रसूल एक ही दफ़ा मबूस किया जाता है, जिसकी तरफ वो कह देता है कि इलैकुम। ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ, तुम्हारी तरफ। अगर तो उम्मत दोबारा उन्होंने उम्मत मोहम्मदिया की तरफ भी रसूल बनकर आएंगे तो मुझे दिखा दो, कोई कुरान पाक की एक आयत दिखा दो, कोई एक हदीस दिखा दो जिसमें रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ईसा इब्ने मरियम उम्मत मोहम्मदिया की तरफ रसूल बनकर आएंगे, तो ऐसी दिखा दो। बाकी आपका बार बार आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम के साथ नबीउल्लाह के अल्फाज आ गए हैं, तो उससे आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं और उससे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की नबूवत साबित करना चाहते हैं। तो याद रखें ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी कि नबीउल्लाह के अल्फाज तो ईसा इब्ने मरियम को कुरान कह रहा है। मैं आज रात, हमारे पास 2 बज गए हैं, तकरीबन 1-2 का टाइम है, इस वक्त भी मैं ईसा इब्ने मरियम को नबीउल्लाह मानता हूँ। अगर कल को आ जाए तो कल भी वो नबीउल्लाह वही होंगे जो आज टाइटल इस वक्त है। अगर मेरे अभी 10 मिनट बाद वो उनका नज़ूल हो जाता है तो उस टाइटल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अब भी उनको नबीउल्लाह मानता हूँ, मैं उनके नज़ूल के बाद भी उनको नबीउल्लाह मानूंगा, लेकिन वही मानूंगा जो पहले मानता हूँ, मेरा जो अब ईमान है। तो इसलिए मोहतरम, अब ईसा इब्ने मरियम अगर उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आकर दावा नबूवत आप मुझे दिखा दें तो मैं अभी वफ़ात ईसा का ऐलान करके मैं आपकी जमात में शामिल हो जाऊंगा। मुझे ये दिखा दें कि ईसा इब्ने मरियम इस तरह आकर कहेंगे कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, जिस तरह मिर्ज़ा यार वही रेपिटेशन आपका ना, आपकी कहानी तो एक ही लंबी कहानी है आपकी। मेरी बात सुने, नहीं वक्त का ज़िया है ना यार, इस तरह तो नहीं ना, 2 आपकी तरफ भी बच गए। देखें आपने सर अपना माइक अनम्यूट रखें, कोई मसला नहीं। आपने ना खुद माना है, अभी खुद माना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ रसूल आए। उसके बाद क्या हुआ कि आयत नाजिल हुई और सब नबियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मिसाक लिया, ठीक है। अच्छा, वो हो गए, उनकी जो नबूवतें थी बकौल आपके कि वो सारी नबूवतें उनकी ख़त्म हो गई, उनकी शरीयत ख़त्म। ये होगी एक नबूवत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की।
यहां तक तो बात ठीक थी। अब जब आ रहे हैं तो अब जो भी आएगा वो उम्मत मुहम्मदिया में आ रहा है। पहले आप ये मानने को तैयार नहीं थे, अब आप ये मानने को तैयार हो गए हैं कि हाँ जी ये आने वाले ईसा इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं जो बनी इसराइल की तरफ पहले आए, जिनके आने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बने। अब उनको आप दोबारा ला रहे हैं और उनके लिए भी हजूर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावा फरमा रहे हैं, ये हजूर का दावा है, ये अस्दकुस सादिकीन का दावा है। दावा हजूर का क्या है कि मेरे बाद जो ईसा इब्ने मरियम आएगा वो नबीउल्लाह होगा, ये हजूर का दावा है। आप कह रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह वो आने वाला कज़ाब होगा, ऐसा कहने वाला भी कज़ाब होगा। आपको ये भी यहां तक भी आपके अल्फाज थे, मैंने आपके सामने हदीस लगाई है। इस हदीस में आने वाले का नबी होने का दावा मैं नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और ये नई नबूवत है, क्योंकि पहली नबूवत आपने खुद माना है कि खत्म हो गई। पहली नबूवत जब खत्म हो गई तो ये नबूवत फिर नई नबूवत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, क्योंकि हजूर आखिरी नबी थे। पहले आप आखिरी पर जोर दे रहे थे, अब मैंने आपको ये भी साबित कर दिया है कि हजूर के बाद जो नबी आ रहा है वो सेकंड लास्ट नबी आपके अकीदे के मुताबिक दोबारा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हजूर तो आखिरी ना हुए फिर ना, ये आपका अकीदा है। आपका अकीदा है कि हजरत ईसा आखिर में फौत होंगे, आखिर में खाना खाएंगे, आखिर में उनकी शादी होगी, आखिर में वो दज्जाल को मारेंगे, आखिर में वो सलीब को तोड़ेंगे। नाउजुबिल्लाह ये काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत या उनके मानने वालों में हो ना सका। तो इसलिए ये पानी में बदानी आप फिर वो एक स्टोरी दोबारा काट के तो सुना देंगे हमें, इसलिए अपने अकायद का ख्याल करें। आप लोग ना कहानी ही सुनाते हो सिर्फ, ठीक है। आपने आखिर में जो कहना है वही बात दोहरा दोगे अगर, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं, खाली। अब आपने जो दोहराना है दोहरा लो। जी मोहतरम, आप मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब को बचाने की खातिर पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेलना पड़ते हैं आप लोगों को। आपने फरमाया, अभी कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो ईसा इब्ने मरियम आएगा वो नबीउल्लाह होगा। एक तो मुझे ये आपने हदीस दिखानी है कि जिसमें ये फरमाया कि मेरे बाद जो ईसा इब्ने मरियम आएगा। ये लगी हुई है हदीस, हदीस लगी हुई है भाई, लगी है। ये लगी नहीं हदीस, पहले बताओ, पहले बताओ। कहानी यार फजूल यार, लोगों को अंधा समझते हो, अंधा समझते हो लोगों को यार। वो सामने पढ़ के सुनाओ मुझे, नल्लू पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ मुझे। मिर्जा साहब की किताब में तो बहुत पढ़ते हो, पढ़ के सुनाओ। ये नहीं पढ़ के सुनाओ, ये झूठ क्यों बोल रहे हो मेरी तरफ? मैं नाले मिर्जा साहब को बचा ही नहीं रहा, मैं तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जैसे बंदे से बचा रहा हूं। जो कह रहा है जो किसी नबी के आने का हजूर के बाद कहेगा वो कज़ाब होगा। तुम नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कज़ाब कह रहे हो। नबी पाक से सुन के लो, सुन के लो, तुम्हारी कहानी तुराई जा रहे हो, मिर्जा साहब को बचा रहे हो, मैं हजूर को बचा रहा हूं तुम्हारे जैसे बंदे से। तुम हजूर जैसे बंदे से, तुम हजूर को बचा रहे हो, तुम हजूर के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे आगे हदीस लगाई है, सारे सुनो भाई। ये मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम की हदीस 73 है। इसमें हुजूर अंधे को भी नजर आ रहा है, अंधे भी देख सकते हैं कि ये हदीस लगी है, इसमें हुजूर आने वाले को नबीउल्लाह कह रहे हैं। भाई कहता था कि नबी नहीं आ सकता हुजूर के बाद, हुजूर आखिरी नबी है और पहली शरीयत थी वो मनसूख हो गई। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है। खामोश क्यों हो जाओ? तुम कहानी सुनाते हो, झूठ बोलते हो। मैं हुजूर को तुम्हारे जैसे राक्षस से बचा रहा हूँ, मैं मिर्जा साहब को नहीं बचा रहा। तुम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ रहे। सुन लो, सुन लो, तुम वही बदतमीजी कर रहे हो यार हुजूर के ऊपर। ये पढ़ो पहले हदीस, हदीस पढ़ो पहले, हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। दावे का मैंने बात नहीं की, हदीस पढ़ के सुनाओ मुझे पहले, ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी हदीस पढ़ के सुनाओ। मैं वो तुम्हें बताऊंगा क्या कहा उन्होंने, पहले हदीस पढ़ के सुनाओ। हदीस पढ़ो, ये जो हदीस नहीं पढ़ेगा फिर उसका कोई फायदा नहीं। कहानी है जो हुजूर को नहीं मानता, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, जो हुजूर को ही कहता है कि वो कज़ाब, नाउजुबिल्लाह। हुजूर फरमा रहे हैं कि वो आने वाला नबी होगा। हुजूर फरमाते हैं कि इसके अलावा भी लैसा बैनी व बैनहु नबिय्युन। जो इस बात को नहीं मानता वो झूठा। तो आप हुजूर क्यों नहीं मानते? हुजूर फरमाते हैं वो नबी होगा, मेरे उसका दरमियान कोई नबी नहीं होगा। कज़ाब तुम गाला पे आ गए, गाला पे आ गए, गाला पे आ गए, गाला पे आ गए और गाला कटने लग गया, गालियां पे आ गया हैं।
इन्नी तेरे नाल अज बड़ी है, तू किताबां किताबां किताबां, मैं सारा कुछ जानना। हजूर की बातों को छोड़कर तुम लोग उधर उधर घूमते हो यार, कैसे लोग हो? कोई तुम लोगों को अकल नहीं।